Okay, let's start. Who is going to just give me a minute. You have to raise your hand for giving me the answer. What is Avogadro's number? Who is going to tell me? Yes, Umama. Avogadro's numbers value is 6.02 multiplied 10 की raise पर 23. But what is it? What is Avogadro number? It is equal to 1 mole. उसके अलावा और ये उसके रिप्रेजेंट अलावा किया जाता है सिंबल से Na से. आपने याद किया बुक में से? डेफिनेशन याद की इसकी? Yes. डेफिनेशन क्या है जो हमारे बुक में है? Avogadro number is a collection of 6.02 multiplied 10 की 6.02. मैं अच्छा इसको ऐसे बोलती हूँ मैं. What did I say when I always said particle Avogadro's number के वैल्यू? I said 6.02 into 10 raised to the power 23. इस तरीके से बोलते हैं, ठीक है? Say it again. किससे बताएं टीचर? 6.02 into 10 raised to the power 23. 6.02 into 10 की raise पर 23. हाँ जी, 10 raised to the power. Raised to the power मतलब उसकी जो पावर बन जाती है, that is known as raised to the power. Okay, ठीक है. ईमान. Yes. If I said to you calculate 1 mole of water, how will you do it? How can you calculate 1 mole of water? By using Avogadro's number. And now जी, by शाबाश. using that teacher water में there are 2 hydrogen atoms and 1 oxygen atom. जी. First we will multiply 2 into 10.02 into raised to the power 23. Yes. And then we will plus it by 6.02 into 10 raised to the power 23. Why we are going to plus it? Because oxygen atom is only one. इस वजह से हम इसको करेंगे. ठीक है. So we will get 1 mole of water. Very good. शाबाश. हलीमा. Yes, teacher. Okay, Halima. Beta, you tell me how we can calculate one formula unit for sodium chloride. Teacher दोबारा बोल दे. One formula unit of sodium chloride. Teacher, sodium chloride. Teacher, sodium. टीचर मैं आपको 1 मिनट लिख एक दफा सॉल्व करके बता दूं. हाँ हाँ, sure. You can open your copies, and if you want to switch on your cameras, you can. Vaji, can you listen me, beta? Vaji. Yes, teacher. बेटे where were you from so many classes? आपका जब दिल करता है आप एक आधी क्लास के लिए आ जाते हैं. Why are you not taking your classes consecutively? जल्दी से बताएं, आंसर देना. टीचर भूल जाता था. जी बेटा. टीचर भूल जाता था. भूल जाते हो? What does it mean? Switch on your camera. हरी आप. हाँ जी, बुक है. जी टीचर है. Show me. Show me your book. Okay, don't you have the timetable? नहीं टीचर मेरे पास I'm नहीं. saying don't you? Timetable क्यों नहीं है आपके पास? The school have sent you the timetable, then why don't you have? टीचर मुझे तो नहीं मिला. मुझे. You can ask the school administration again and get the timetable and mention the time somewhere else ताकि आपको पता हो आपकी क्लास कब है.
दिस इज नॉट द वे कि ठीक। आप लोग क्लासेस अटेंड नहीं करेंगे तो कैसे आप लोगों को समझ आएगा. चैप्टर इज गोइंग टू बी एंडेड, हाउ यू विल बी. Teacher, can I tell you the answer? क्या सलीमा? Teacher, 58.5 AMU. मेरा बेटा ये तो उसका वेट है. आई एम सेइंग कि फॉर्मूला यूनिट ऑफ सोडियम क्लोराइड एवोगैड्रोस नंबर के उसमें. ओके मैं आपको बताती हूँ. मैं आपसे ये कह रही हूँ जैसे 1 मोल ईमान ने अभी हमें वाटर के कैलकुलेट करके बताए. Yes. Similarly, when we are talking, मैम आप भी ध्यान से सुनो बेटे. When we are talking about, अगर आपको इंग्लिश में समझ नहीं आती, I will convey in the Urdu. Okay. आ जाती बता है दे मुझे जैसे फिजिबल है. Teacher, ठीक है, fine. English में आ जाएगी. Okay, fine. I was saying कि formula unit means किसके होता है formula unit? Formula unit is always about ionic compounds. Now we know sodium chloride is an ionic compound. Now what is ionic compound? Ionic compound are those compounds which has ions, sodium ion and chloride ion. Sodium has positive charge, so it is cation. Chloride have negative charge, it is anion, right? तो हम इसका formula unit जो है उसकी बात करेंगे. What Halima has told us, Halima ने हमें उसका weight बताया है that sodium is 23 and chlorine is 35.5. When we are going to add it up, it becomes 58.5 AMU. That is perfectly fine. But right now I am discussing Avogadro's number and we want to know that how much formula units and how much ions are over there. So what will we do? All of you know in sodium chloride, 1 sodium ion and 1 chloride ion. So 1 sodium ion is equal to 6.0 into 10 raised to the power 23. Sodium ions. Similarly, chloride ions has 6.02 into 10 raised to the power 23 ions. So when we are going to add it up, दोनों quantities को plus करेंगे, we will get 12.04 into 10 raised to the power 23, or sometimes it comes 24, depends upon your calculator. So we can say 1 mole of sodium chloride is equal to 12.04 into 10 raised to the power 23. This one will be the answer and it is written on page number 18. आपका second वाला part. Clear हो मैमा? Teacher, please repeat it again. Mama, that's very bad. You are saying me again and again that repeat it मैंने नहीं again. I कहा. am saying. मैंने कहा Who is teacher. saying? हलीमा आपने कहा? Yes, teacher, एक दफा दोबारा बता दें. बेटे क्यों नहीं समझ आया मुझे ये बताएं. ओ मैमा, is it clear? yes देखो हलीमा बेटे, मैंने आपसे कहा है कि 1 सोडियम आयन. Let me see one thing just. Just give me a minute. Can you see a whiteboard? Yes. Yes. Okay, now I am writing. Look, 1 mole of sodium chloride. We want to determine it, right? हमने इसको जो है determine करना है. यही मैंने आपसे question किया है. Now you can see there is sodium chloride. We can say Na is equal to 6.02 into, where is into, this is 10 raised to the power 23. अब मैं 23 की पावर जो है वो लिख नहीं रही. ठीक है, आप अंडरस्टैंड कर लीजिएगा इस चीज को. टीचर एक चीज पूछ लूं. जी मेरा बेटा पूछें. टीचर Na का जो Na की जो वैल्यू होती है वो आई गेस 23 होती है ना. Yes, that is the weight. हम इस टाइम वेट से कंसर्न नहीं है, हम इस टाइम मोल्स निकाल रहे हैं कि हमने 1 मोल निकालना है. ठीक है, तो आपने वो बात एक भी मोल आपकी की ठीक वैल्यू है कि लिखी जो है ना. इसका 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड डिटरमिन करना है. मैंने आपसे कहा है कि 1 मोल ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 6.02 into 10 raised to the power 23. ये हम बात कर रहे हैं एवोगैड्रोस नंबर की कि इसमें कितने नंबर ऑफ सोडियम आयंस हैं. वी आर नॉट कंसर्न विद द वेट. ठीक है, यहाँ पे Na के साथ प्लस भी आएगा ऊपर. ओके. ठीक है, अब ये 23 पावर है उसकी. मैं इसको इरेज कर रही हूँ, कंफ्यूज ना होना. देन क्लोरीन
क्लोरीन का हमारे पास है जी 6.02, द सेम थिंग 10 raised to the power 23. One sodium ion, one chloride ion. We are going to simply add it up. जब हमने इसको add करना है, we will get NaCl is equal to 12.04 into 10 raised to the power 23. तो हमारे पास ये हम क्या कहेंगे? It is equal to 1 mole of sodium chloride, sorry, ions. ये number of ions हैं total. एक I have said to you that you have to determine 1 mole of sodium chloride. So आपको पता है सोडियम क्लोराइड पे पॉजिटिव चार्ज सोडियम पे आएगा, क्लोराइड पे नेगेटिव चार्ज आएगा. 1 एटम है तो इट इज सिंपली 1 मल्टीप्लाई बाय 6.0 into 10 raised to the power 23. Similarly क्लोरीन है 1 है, it is going to be multiplied with 1. We have to add up. देखो इन सोडियम क्लोराइड को वेट को नहीं, हमने यहाँ पे मोल्स की बात कर रहे हैं तो हम इसके एवोगाड्रोस नंबर को प्लस करेंगे. तो हमारे पास जो टोटल आएगा दैट इज 12.04 into 10 raised to the power 23. This is 1 mole of sodium chloride ions. क्लियर है यहाँ तक? टीचर एक और चीज बता दें, अगर हमने NaCl के अलावा किसी और का निकालना हो तो फिर भी ये सेम प्रोसेस होगा? Same process. Let's say we want to determine 1 mole of H2. ये जो 2 आ रहा है ये आपको पता है ना, दूसरी तरह लिखना है. यस टीचर. मैं इस टाइम इधर से वो मुझे नहीं मालूम कि किस तरीके से इसको सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट करना है. इट विल टेक अ टाइम. कोई बात नहीं टीचर, समझ आ रहा है. Fine. This is 1 mole of water. We can say we have 2 atoms of what? 2 atoms of hydrogen. Sorry, it is at the rate 2 atoms of hydrogen because it is H2O plus 1 atom of oxygen we have. This is the thing. Yes, Clear, teacher. नीमा? देखें ये देखें H के साथ 2 लगा हुआ है ना, इसका मतलब है 2 एटम है. H2 means it is a 1 molecule of hydrogen. Molecule is made up of atoms. But right now I am saying 2 atoms, तो इसका मतलब है 2 हाइड्रोजन के एटम है. ये जो 2 होता है it is showing कि कितने एटम्स हैं. Let's say यहाँ सोडियम के साथ में 2 लिख दूं, यहाँ पर Na2 लिख दूं तो it means 2 सोडियम है यहाँ पर. तो यहाँ पे इस टाइम मैं आपसे कह रही हूँ कि 2 हाइड्रोजन के एटम है and 1 atom is of oxygen. Now we have to determine 2 moles of hydrogen. How I am going to calculate it? Because it is 2, we are going to multiply it with 2. 2 multiplied by 6.02 into 10 raised to the power 23. This one will be the amount of hydrogen. And when we have to determine mole of oxygen, तो हम क्या करेंगे? Simply एक atom है, so we are going to multiply only 6.02 into 10 raised to the power 23 will be over there. ठीक है? It is same. Then जब हमने इनको add up करना है तो जो हमारे पास let's suppose it is A and let's suppose it is B. Now if we going to determine the mole of water, it is equal to A plus and B. A और plus को A plus B करेंगे, we will get the answer. Clear हलीमा? यस टीचर, अब काफी अच्छी समझ आ गई है. चलो शुक्र है समझ आ गई. उमैमा, is it clear? Yes, teacher. Okay, fine. Now hurry up, please. We are moving on page number 18. Please all of you open your books. Because if I am going to share the screen, तो ये whiteboard हमारे पास से हट जाएगा. Now what we are going to do, mole is known as, the other name of mole is chemist secret unit, right? 2016 में मार्क कर लीजिए, दोनों दफा क्वेश्चन आ चुका हुआ है. If you didn't mark it when the schools are going to be open, मैं आपको दोबारा से मार्क करा दूंगी. Right now it is not that important कि आप इस चीजों को मार्क करें. It's important for your understanding. अब देखें, मैंने आपको बताया what is Avogadro's number. Avogadro's number को we have related with mole. ठीक है? अब मोल की सबसे पहले डेफिनेशन है. व्हाट इज अ मोल? मोल इज डिफाइंड एज द अमाउंट क्या? mass of a substance that contains this much number of particles, जो कि Avogadro's number है. ठीक है? It might be atoms, it might be molecules and it might be formula units. ठीक है? हमने 3 चीजों को पीछे भी डिस्कस किया है. रिमेम्बर क्या क्या थी? बताएं मुझे. उमैमा, you told me.
टीचर एटम्स का था, मॉलिक्यूल्स का था और फॉर्मूला यूनिट्स थे। ठीक है, लेकिन हमने उसको किस चीज से डिनोट किया था? जब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द mass of atoms तो हमने उसे क्या कहा था? But we will ग्राम। say it is known as dash gram atoms. ठीक है, gram atoms, gram atoms. Then we have said gram molecules, and the last one is gram, बोले, फॉर्मूला यूनिट। ये yes, ये तीन चीजें हमने डिस्कस कर ली है। Now all of you know that gram atoms क्या है? Gram atom is for atoms weight, atoms का weight in grams, simple. ठीक है, ये क्या है? Molecules weight in grams, simple. Then formula क्या है? बोले ना बेटे। Of ionic compounds. Yes, शाबाश, it is in gram. ये एक छोटी सी टर्म है, अगर आप इसको अपने उस पेज पे भी लिख लो ना, दैट इज परफेक्टली फाइन, आपको याद रहने में आसानी रहेगी। अब हमने मोल के बारे में स्टडी करना है, तो साथ में हमने इस वेट को लेकर चलना है। द वेट इन ग्राम्स, किसके? एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। आपने मेरे व्हाइट बोर्ड की तरफ देखना है, ठीक है? इनके वेट को, और ये कितने कंटेन करते हैं, दैट इज मल्टीप्लाई, हम इसको कर देंगे, या मैं आगे लिख रही हूँ, इनटू एवोगाड्रोस नंबर Na, एवोगाड्रोस नंबर के साथ इसके कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। नाउ बेसिकली व्हाई वी आर स्टडीइंग इट, और ये जो मोल है आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वी रिप्रेजेंट इट विद MOL, मोल, बट ओरिजिनल स्पेलिंग्स आर MOLE, बट वी आर गोइंग टू राइट इट डाउन MOL जब हमने इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में करना है। बेसिकली मोल जो है, मैं लाइन बाय लाइन इसको रीड कर देती हूँ, उसके बाद जो नेक्स्ट पेज नंबर 19 पे है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अ मोल इज डिफाइंड एज द अमाउंट mass of a substance। अब mass जो है वो एटम्स का है, मॉलिक्यूल्स का है, आयंस का है। that contains what, ये आगे मैंने multiply by Na इसलिए लिखा है कि that contains के कितने number of atoms हैं, उसको हमने multiply करना है 6.0 into 10 raised to the power 23, because we want to determine the number of particles. It is impossible to find out the number of atoms, number of molecules, number of ions. That's why हमारे पास Avogadro's number की strategy आई है, ठीक है? It established a link between a mass of the substance, आप देखें यहाँ पे mass of substance है grams, and number of particles। number of particles हमें कहाँ से find out होंगे? from the Avogadro's number। साथ साथ आपने white board पे भी नजर रखनी है, ठीक है? as shown in the summary of molar calculations, it is, ये आगे आएगी molar calculation की summary, it is abbreviated as mole। you know that a substance may be an element or compound। आप सबको पता है substance को हमने categorize किया था लास्ट टाइम, मैंने कल आपको पेज भी दिखाया था कहाँ पे हमने ये पढ़ा है, जिसमें अब क्या चीजें आती हैं? मोलेक्युलर और आयनिक, यानी दिस वन एंड दिस वन। एलिमेंट के लिए सिर्फ हमारे पास एटम आएगा, बट इफ वी आर कंसर्न्ड विद कंपाउंड्स देन इट इज मॉलिक्यूल्स एंड ग्राम फॉर्मूला मैस आएगा। mass of a substance is either one of the following: atomic mass, molecular mass or formula mass। these masses are expressed in, हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा है किस यूनिट में? AMU। किसमें हमने इसको एक्सप्लेन किया था? AMU क्या है बच्चों? क्या है AMU? Atomic mass unit. दिस इज अ यूनिट ग्राम्स के लिए। जैसे लेट्स से मैं कहूँ कि 1 ग्राम, ओहो, 1 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज इक्वल टू, जैसे हलीमा ने अभी वेट कैलकुलेट किया था 58.5 ग्राम्स, इट इज ऑल्सो इक्वल टू 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड। समझ आई? अब हम जिस मैस की बात करें वो इस मैस की बात करेंगे, ये 1 ग्राम वाले की, और हम साथ में इसकी भी बात करेंगे 58.5। ये उसका वेट है एक्चुअल, ठीक है? जैसे मैंने आपको लैब में एक चीज दे दी और मैंने कहा कि जाएं जाके इसका 1 ग्राम वेट करके आए। मैंने जैसे आपको शुगर दे दी घर में, मैंने कहा 1 चम्मच लेके आओ इसका, तो आपने शुगर निकाली और आपने उसका 1 चम्मच ला दिया, दैट इज इक्वल टू 1 ग्राम। तो मैं आपने साथ कहा लें जी मैंने आपको 1 मोल शुगर दे दी है, फाइन। अब इसी से हमने इन दो चीजों से इसको रिलेट करना है, दैट हाउ वी आर गोइंग टू रिलेट इट अप। mass of a substance, sorry यहाँ तक हो गया। these masses are expressed in atomic mass units, but when these masses are expressed in grams they are called as molar masses। अब देखो ये मैंने 58.5 लिखा ना ग्राम, this is also known as molar mass। ये एक नई टर्मिनोलॉजी है, मोलर मैस। मोलर मैस क्या है?
ये क्या हो गया, मोलर मास, द मास विच इज इन ग्राम्स 58.5 ग्राम्स लिखा आ रहा है साथ, दिस इज नोन एज मोलर मास। मोलर वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम मोल्स एंड मास इज वेट, ठीक है, हम इसको कहेंगे ये हमारा मोलर मास है। कौन बेटे बार बार अनम्यूट कर रहे हो? यस ईमान। टीचर ये जो आपने ऊपर लिखा हुआ 1 ग्राम ऑफ NaCl इज इक्वल टू 58.5 ग्राम, इधर ग्राम के जगह आप AMU नहीं लिख सकते? AMU भी लिख सकते हैं, सही है वो, लेकिन चूंकि हम बात करने लगे हैं मोल्स की, तो इसलिए उन्होंने कहा है कि जब हम इस वेट को ग्राम में लेंगे तो हम इसको कहेंगे मोलर मास, लेकिन जब ये AMU में होगा यानी सिर्फ खाली ग्राम्स में होगा, दैट इज समथिंग एल्स जो हमने पीछे पढ़ी है, ठीक है। Okay. आगे आप पढ़ोगे ना, आप आगे आपको मजीद क्लैरिफाई हो जाएगा। साइंटिस्ट हैव एग्रीड दैट एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन 1 मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस, thus quantitative definition of mole is the atomic mass, molecular mass or formula mass of a substance expressed in gram is called mole। means आपके पास ये जितने तीनों हैं, ये ग्राम एटम्स, ग्राम मॉलिक्यूल्स और ग्राम फॉर्मूलाज, when you are going to express it in grams, ये जिस तरह से इसको वेट में आप ग्राम्स में करोगे तो हम इसको कहेंगे it is called as, what did we say, mole, इसको हम मोल बोलेंगे जब हमने इसके वेट को उस तरह कर देना। ना पेज नंबर 19 वहां पे देखें, आपको ज्यादा क्लियर होगी ना। ऑल ऑफ वी नो, यहाँ से इरेज कर दूं, किसी ने कोई चीज इधर से पूछनी तो नहीं? No. Should I erase it from? Okay, fine. So on page number 19 you can see there are certain examples. हमने तीन चीजें डिस्कस की हैं। नंबर 1 is atom, number 2 is molecule and the last one is formula unit. So सबसे पहले atomic mass, we are not writing molecular mass, very clear about these things. What is atom? Atomic mass of carbon means carbon अकेला, C capital, carbon is equal to, कार्बन का वेट है 12 ग्राम्स and it is equal to, just give, okay जी। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 ग्राम्स। 12 ग्राम कहाँ से आया, यह उसका वेट है और यही इक्वल हो जाएगा 1 मोल ऑफ कार्बन के। क्लियर? क्लास 9 इज इट क्लियर बेटे? जितना हमारे पास Yes. वेट है वो ग्राम्स में, दैट इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ कार्बन। ये हमने बात कर ली एटम की। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स मोलेक्युलर मास। मोलेक्युलर मास ऑफ, हम वाटर की ही डिस्कस कर रहे हैं, इज इक्वल टू, वाटर का टोटल वेट क्या है, व्हाट इज टोटल वेट ऑफ वाटर, जल्दी से बताएं। 18, so it is equal to 18 grams 1 mole of water, H2O। क्लियर हो गया मॉलिक्यूल्स का? अब हम बात करें अगर किसी और मोलेक्युलर मास, किसी और एलिमेंट का नाम लो जल्दी से। हलीमा आप बताओ किसी और मॉलिक्यूल का नेम। क्लोरीन। नहीं मॉलिक्यूल 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 चलें क्लोरीन की बात ही कर सल्फर लेते हैं। डाइऑक्साइड। Cl, सल्फर डाइऑक्साइड कर लेते हैं जनाब, SO2। व्हाट इज सल्फर वेट, जल्दी से बताएं। सल्फर का वेट होता है टीचर 32 आई थिंक। 32. हाँ जी, आप व्हाइट बोर्ड पे नहीं देख रहे, मैं लिख चुकी हूँ सारा। इट इज नो टीचर 32 मैंने नहीं and देखा था, मैंने oxygen पहले is बता 16। दिया था। मैं आपको वही बता रही हूँ, आप लोग नहीं देख रहे। अगर आप लोग देख रहे हो तो आपको आराम से पता लग जाए कि टीचर ने क्या लिखा है। सो दिस इज द आंसर। उमैमा चेक इट आउट। Yes. We can say that sulfur dioxide, it is 64 grams and it is going to be equal 1 mole। Excuse me teacher, चाहे जितना भी वेट होगा वो 1 मोल के इक्वल होगा। Yes Alina, what are you saying बेटे? Excuse me teacher, मैं Alina, पूछ रही थी चाहे जितना मर्जी वेट होगा वो 1 मोल का इक्वल होगा। हाँ जी, चाहे इट इज 2000 ग्राम्स, वो 1 मोल के ही इक्विवेलेंट होगा।
ठीक हो गया। अच्छा जी, आपकी बुक में H2SO4 की एग्जांपल है। H2SO4 का वेट है 98 ग्राम, सो इट इज गोइंग टू बी इक्वल 1 मोल ऑफ H2SO4। नाउ तीसरी कैटेगरी हमारे पास क्या थी? व्हाट वाज द थर्ड कैटेगरी Formula बेटे? mass. Yes, formula mass. Formula mass of sodium chloride is equal to 58.5 grams. It is the weight of sodium chloride and it is going to be equal to 1 mole of that particular thing, sodium chloride. Clear? Yes. बच्चों clear? Now look at the formula, very important. That someone said कि आपने number of moles calculate करने हैं and they have given you certain things कि आपने number of moles कैसे find out करने हैं। आपने लिखना है जी number of moles का formula, that is known mass of a substance. Now what does it mean, known mass of a substance? known mass कि आपको कितनी quantity दी गई है। लेट्स से मैं आपसे कह रही हूँ, घर से एग्जांपल में शुरू करते हैं। लेट्स से आई एम गिविंग यू द टेबल सॉल्ट, जिसको हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं, नमक को, खाने का नमक जो हम यूज करते हैं। एंड आई एम सेइंग टू ऑल ऑफ यू कि आप मुझे इसके 2 स्पून निकाल के दें। सो अगर मैं 2 स्पून को रिप्लेस कर दूं उसके वेट से, एंड इफ आई एम गोइंग टू से लास्ट 10 मिनट्स हमारे पास रह गए, जल्दी से इस चीज को क्लियर करना कि अगर मैं आपको साथ में कह रही हूँ नॉन मैस ऑफ अ सब्सटेंस है कि आपको 2 चम्मच मैंने कहे हैं, तो आपके पास नॉन मैस कितना आ गया? 2 स्पून। And then you have to divide it with molar mass. Right now we have studied, oh why it is not right? Okay, right now we have studied what is molar mass. Which is in क्या पढ़ा grams. अभी हमने? Yes, the weight of a particular thing in gram is known as molar mass. अब देखो ये number of moles का formula है, known mass of a substance या like 2 spoons divided by molar mass of substance. molar mass क्या है हमारा? substance कौन सा? sodium chloride. So the weight is 58.5. How can we calculate number of moles is equal to, कितने मैंने spoons कहे हैं आपको? 2 spoons divided by what is the weight? What is the weight of sodium chloride? Hurry up girls. Yes, 58.5. Now if we are good, if we are going to divide it, we will get Teacher? number of moles. Let's say बेटा एक मिनट, let's say it is 8. जी बेटा बताएं हलीमा। अगर मैं 58.5 AMU लिखूं, अगर मैं 58.5 AMU लिखूं तो गलत नहीं होगा? गलत होगा वो। ओके, ग्राम्स लिखना है। Yes, because it is molar mass. AMU is something else. Molar mass is something else. जब आपको सिर्फ खाली मैंने आपको सिर्फ कहा ना find out the weight of sodium chloride, then you will write down it is AMU. But when I am talking about in the terms of moles, then you are specific about it because हमने molar mass को study ही इसलिए किया है. So you will get the answer A. अब हम इसको अगर केमिस्ट्री की लैंग्वेज में रिप्लेस कर दें, ये 2 स्पून तो इधर है ना हमारे पास। लेट्स से मैंने आपको एक न्यूमेरिकल दे दिया है, न्यूमेरिकल आपके पास है जी, न्यूमेरिकल कल करेंगे सारे के सारे, ठीक है। अब मैं 2 स्पून की जगह आपको कह देती हूँ कि आपके पास यू हैव 50 ग्राम्स ऑफ सोडियम क्लोराइड, फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स। व्हाट विल यू डू? यू हैव, मैं लिख रही हूँ इसको जल्दी से करें, यू हैव 50 grams of sodium chloride, find out its mole. How you are going to calculate it? कौन बताएगा? जल्दी से करें, फॉर्मूला ऊपर लिखा है, 50 divided by 58.5. Yes. वेरी गुड, यस दिस इज द आंसर। क्लियर है Yes. बेटे? क्लियर है यहाँ तक? ओके फाइन, नाउ Yes, वी आर teacher. मूविंग, लुक एट योर बुक पेज नंबर 19। अब देखें ये फॉर्मूला आपके पास लिखा हुआ है ना, नंबर ऑफ मोल्स का, नॉन मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास। इसी को हम थोड़ा सा अगर रिप्लेस कर दें, लेट्स से हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं एंड दे हैव गिवन अस द नेम ऑफ मॉलिक्यूल के, हम ये किसके फाइंड आउट किए हुए हैं नंबर ऑफ मोल्स। तो हमारे पास नॉन मास ऑफ अ सब्सटेंस नहीं है एंड इफ वी वांट टू कैलकुलेट दिस मास ऑफ सब्सटेंस, तो हम क्या करेंगे? फॉर्मूला में ही थोड़ा सा इंटरचेंज कर देंगे, तो हमारे पास मास आएगा, मास ऑफ सब्सटेंस। कैसे आएगा? मास ऑफ सब्सटेंस को दूसरी तरफ ले जाएंगे और सिंपल बेसिक मैथ है, नंबर ऑफ मोल्स, फॉर्मूला को ही रीअरेंज करेंगे आप, नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। मोलर मास को m.mb करके लिखते हैं यहाँ पे, अब आपको नजर नहीं आ रहा होगा, थोड़ा सा ऊपर कर दे अपना। मैं कर रही हूँ।
मैं आपसे कह रही हूँ कि मास ऑफ सब्सटेंस देखें हमने निकालना है, ऊपर लिखा हुआ है ना जो नोन मास ऑफ सब्सटेंस, हमने मास फाइंड करना है। मास इज इक्वल टू, मास को चेंज करेंगे, यहाँ पे ऊपर जो है वहीं पे रहने देंगे और मोलर मास को उस तरफ ले जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स की दूसरी तरफ। तो मास, नंबर ऑफ मोल्स, जो इक्वेशन हमारे पास बनेगी, नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। मोलर मास को m डॉट m लिख रही हूँ मैं, बड़ा, समझ आया? फॉर्मूला से ही रीअरेंज Yes. करना है। वी हैव द फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल, उसी से हमने रीअरेंज किया। आप देखें मास ऑफ सब्सटेंस उधर ही रहने दिया जो कि इस तरफ था हमारे पास, एंड देन जो नीचे वाली वैल्यू है मोलर मास, उसको हमने उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो वी कैन इजीली डिटरमिन द मास ऑफ सब्सटेंस। लेट्स से अब मैं आपको दे रही हूँ एग्जांपल, इसको जल्दी से करना है आपने। यू हैव 5 moles of water, find out its mass। 5 multiply 16, नहीं 18. Yes, shabash. 5 multiplied by 18 is the answer. Let's say it is B. Clear? And then you are right to write down B के साथ unit आएगा grams. ठीक हो गया? Now we are moving towards yes बेटा। तो टीचर हम इसको डिवाइड भी कर सकते हैं? नहीं नहीं, डिवाइड क्यों करना है लीना? What kind of question you are asking बेटे? I'm telling you that, listen to me, don't you have the book right now? नो टीचर है मेरे पास बुक। Open the book, page 19. यस यस आई हैव ओपन। अच्छा, बिफोर इससे पहले कि आपका लेक्चर खत्म हो जाए, आप लोगों ने इसकी सारी की प्रैक्टिस करनी है और ये फॉर्मूलाज आपने अच्छी तरह से लिख लिख के इसको प्रैक्टिस करनी है। इन द नेक्स्ट क्लास मैं आपसे लाजमी ये चीज पूछूंगी, आइदर यू हैव डन द प्रैक्टिस और नॉट। ओके लीना, लुक एट द बुक बेटे। We have the formula of number of moles. This is the formula, number of moles is equal to known mass of a substance when divided by molar mass of the substance. Fine. We are saying that if in case we have, because in the next classes you have to do the numerical, so it's very important कि आपको formulas जुबानी याद हो, and you should be that much calculative that whatever you are provided, आपको पता हो आपने किस तरीके से formulas को घुमाना है, how you are going to shuffle it and how you are going to answer it. So number of moles अगर हमारे पास हैं and we have molar mass, obviously molar mass आपको दिया नहीं होगा, you have to determine it by yourself. ये last classes में हमने बहुत practice की है इस चीज की, and I have assigned different tasks as well. तो बच्चों ने किए हुए थे सबने। अगर नहीं आता तो go on the last previous lectures, you will be able to find it out over there. तो आप क्या करेंगे, mass of substance निकालना है, mass of substance को उधर ही रहने देंगे, molar mass divide हो रहा है, on the other side when it will go, it is going to be multiplied, so we will get number of moles multiplied by molar mass. When we are talking about कि हमने किसी चीज का mass determine करना है तो हमने इसको number of moles से multiply ही करना है, but if we are concerned that we have to find out the number of moles, तो तब हमने इसको डिवाइड ही करना है। जैसे हमें पता है a plus b square is equal to a square plus 2ab plus b square, this is a natural thing ना, आप इस फॉर्मूला को अप्लाई करते चले जाते हैं। सिमिलरली नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है, इसको आपने सारी